Good morning, children. So, once again, we are meeting in our new lecture. That is lecture number 4 of chapter 3. Movement towards the new world. Now see, children, I have explained you in detail what is meant by new world. New world stands for new arrangement. The arrangement made after 1945. You understand? What was same, but there was a necessity of making new arrangement. Acha, now tell me, why there was a need of making new arrangement? हम न्यू अरेंजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई पुराना हो जाता है अथवा ये सिस्टम वर्कआउट नहीं होती है अथवा XYZ कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती है, तो ही हम नया कुछ करते हैं ना. वरना अगर पुराना अरेंजमेंट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कोई ऐसा बंदा तो पागल है नहीं कि उसमें सब कुछ डिस्टर्ब करके न्यू अरेंजमेंट करे. सही बात है. तो ये मैं जो बात कर रहा हूं ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की दुनिया की. रिकैप ऑफ लेक्चर 1, 2 and 3. World War 1 took place. We'll not go in detail because I have new things to explain. The roots of World War 1 was in Sudan War. So we can rightly say, ये मैं आपको क्यों बार बार रिफ्रेश करवाता हूं, ताकि आपको बिल्कुल पूरा पाठ कंठस्थ हो जाए. बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बच्चे लोग पढ़ते हो, कभी आपने देखा हम बुक में से मैं आपको पढ़ाता हूं? इट इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड. ठीक मेरी तरह आपको भी ये पूरा लेसन, मेरी इसी अंदर से इच्छा है कि हर एक बच्चे को पूरा लेसन कहीं से भी पूछो, परफेक्ट उसका होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए. इसलिए हम बार बार रिवाइज करते हैं. World War 1, the seeds of World War 1 was sown at the time of Sedan War between France and Germany in 1871, where Germany won the war, and as a prize of winning, some provinces of France were captured by Germany forever. Minerals were taken away. War fine was imposed. So, from that time onward, France was burning with anger, revenge. France was waiting for right time. Time passed on. हम सबको मालूम है दुनिया गोल है. यहीं से हम निकलते हैं, शाम को उधर वापस पहुंच जाते हैं. हर एक बंदे का टाइम आता है. तो आज जर्मनी का दिन था. समय चलता गया, कई चेंजेस होने लगे, कई बातें हुई यूरोप में, और आखिर जो फ्रांस एक बार डिफीट हुआ था, आज वो पावरफुल हो चुका था. लेकिन बदले में मन में बदले की भावना तो थी कि हमारे साथ जर्मनी ने आज से 45 साल पहले ऐसा किया. फैक्टर्स लीडिंग टू वर्ल्ड वॉर 1. भले वॉर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन एक महीने बाद ऑस्ट्रिया और सर्बिया ने तो समाधान कर लिया था और पूरी दुनिया लड़ती रही. 1914 में शुरू हुआ, 1919 में 18 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, एंड ऑफ 18. फिर इन 1919 Paris peace process was initiated, which we call
as a Treaty of Versailles. That is lecture number 2. I told you, rank injustice was done to Germany in Treaty of Versailles. And adding to their miseries, German King Wilhelm Kaiser abdicated the throne. प्रजा को अपने हाल पे छोड़ दिया. कोई ऐसा मुखिया नहीं था कि कुछ बोले, किसी का विरोध करे. और ऐसे माहौल में Germany was forced to sign this treaty. तो मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, historians believed that this treaty in coming days will be responsible for some drastic event. और वही हुआ. 20 साल में जहां जहां डेमोक्रेसी थी वहां डिक्टेटरशिप आ गई. Democracy was replaced, and dictators like Hitler, Mussolini became extremely powerful, which dragged the world into Second World War. हिटलर ने अपने देश को उठाने के लिए ये सब किया था, लेकिन कई काम गलत थे. थर्ड लेक्चर, वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के कई सारे फैक्टर्स थे, रीजंस कई सारे थे, लेकिन जो 20 साल का जो प्राइम रीजंस थे वो हमने पढ़े. तो इन दैट 20 years, that is called from 1919 to 1939, Nazism was born in Germany by Hitler. Hitler became extremely powerful. Fascism was born in Italy. जापान सपोर्टेड मिलिट्रिज्म. ये 3 बड़ी बातें थी 20 साल की, और तीनों बातों में कोई मर्म छुपा था. Why Nazism was born in Germany? I have explained you. Because of Treaty of Versailles, because of rank injustice, because of revenge by powerful nations, Germany was provoked, and hence people of Germany in this disparity, in this time of depression, they took Hitler as their leader and looked upon Hitler as their savior. ऐसे माहौल में हिटलर जर्मनी का मसीहा बन चुका था. इटली का बात करें तो इटली में भी ऐसा कुछ नहीं था. इटली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त, बट दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल्ड टू गेट गेन्स फॉर इटली इन लीग ऑफ नेशंस. जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई, जब बंटवारा हुआ, तब इटली एलाइड के साइड से लड़ा था. इट हैज ऑल्सो इनकर्ड हेवी लॉसेस, बट all these things would have been forgotten if the superpowers of that time, at the time of signing Treaty of Versailles, would have benefited Italy. उस वक्त इटली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. इनजस्टिस वॉज डन टू इटली. कोई भी वॉर फाइन नहीं मिला. टुकमा ऐसे कह सकते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के जो सारे बेनिफिट्स थे वो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस निगल गए. खा गए नहीं, निगल गए. स्वाभाविक से दुख तो होगा कि भैया हमने भी वॉर किया है, हमने भी लड़ाई लड़ी है, तो हमारा तो कुछ सोचो. लेकिन कुछ नहीं हुआ. एंड हेंस पीपल वर डिस्प्लेस्ड विथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव टू बी वीक आउटसाइड, fighting for their national cause. Taking advantage of this situation, anti-democracy government was established in Italy, which was headed by Benvenuto Mussolini, fascist party. And what was the agenda of fascist party?
on which principles did fascist party worked? You all know. वो मैंने तीसरे लेक्चर में आपको समझाया था. फिर बात करते हैं नाजिज्म, सॉरी मिलिटरिज्म जापान. इटली के साथ जो हुआ वही जापान के साथ हुआ था. जापान को कोई वॉर बेनिफिट नहीं मिला. ऑन द कॉन्ट्ररी जो आसपास के जो इलाके उसने कॉन्कर किए थे वो वापस देने पड़े. Japan was literally ignored by League of Nations. So Japan was frustrated. People gave rise to the thoughts of militarism. People were displeased by these steps, Western powers. जापान भी अंदर से सुलग चुका था, सहम गया था कि भाई ये क्या, हमको भी कुछ फायदा तो होना चाहिए ना. लेकिन कुछ नहीं हुआ. उसके बाद जापान को एक जो स्टेप था वो जापान का आत्मसम्मान के लिए भारी धक्का था कि जापान वाज आस्क्ड to reduce its naval forces just to 35% of America and England. तो ये तो सोवरेनिटी पे आ गई बात. अमेरिका और इंग्लैंड के जितने फोर्सेस नेवी के थे उससे 35% तक ही जापान रख सकता था. ये तो सरासर नाइंसाफी हुई. ऐसे थोड़ी चलता है. सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स happened. जापान का साइबेरिया का जो प्रोविंस जीता था वो वापस देना पड़ा. चाइना का प्रोविंस जो जीता था वो वापस देना पड़ा. तो ये बात हुई. आया कुछ नहीं, सिर्फ देना ही पड़ा. क्या कि आप लीग ऑफ नेशन के मेंबर्स हो. तो ऐसे कायदे कानून थोड़ी चलता है. कायदा सबके लिए समान होता है. आपके लिए बेनिफिट और हमारे लिए नुकसान. ये कायदा नहीं है, ये नाइंसाफी है. और ये नाइंसाफी जापान के साथ हुई थी. एंड दैट इज व्हाई जापान सपोर्टेड मिलिटरिज्म. जापान में डेमोक्रेसी थी लेकिन एम्परर मोनार्की का इतना ही मान सम्मान था. एम्परर हिरोहितो वाज इन पावर, मींस ही वाज अ किंग ऑफ जापान. And he was also a supporter of these activities. Japanese youth started training of military. Military people were looked upon with great respect. जापान में इलेक्शन हुए. जो पार्टीज मिलिटरिज्म को सपोर्ट करती थी वो पार्टीज की जीत हुई. मतलब देश का माहौल बदले का था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम उसका जवाब देंगे. हाथ पे हाथ रख के हम बैठने वाले नहीं हैं. और ये बात हुई. और जब हिरोहितो ने हिरोहितो के बाद जब एम्परर मेजी सत्ता में आए, मोनार्क बने, ही वॉज यंग ब्लड एंड ही सपोर्टेड ओपन मिलिटरिज्म. एंड बिकॉज ऑफ दिस Japan advanced on the path of militarism and started to conquer the lost territories. उसने कोरिया conquer किया, मंचूरिया conquer किया, because Japan was following the policy of imperialism, policy of expansion. At the same time, it was also following the policy of rapid industrialization. तो इसको लिए invasion, पावर एस्टैब्लिश करना खूब जरूरी था. इसीलिए जापान ने आसपास के इलाके पे नजर दौड़ाई और उसको कॉन्कर किया. दिस इज हाउ मिलिटरिज्म वाज डेवलप्ड इन जापान. फिर बात करते हैं अमेरिका की. ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिर्फ एक ही देश अच्छा बचा था, अमेरिका. यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अमेरिका भरपूर मदद कर रहा था. अमेरिका को कोई फिजिकल नुकसान नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि वो
लड़ाई यूरोप में हुई थी, अमेरिका की एक ईंट भी नहीं टूटी थी। अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका इंटैक्ट था। इसीलिए जब यूरोप को खड़ा करना की जिम्मेवारी आई, at that time there was only one option of developed country, that was called America. बाकी सारे देश तो इतने डेवलप नहीं थे, टेक्नोलॉजी उसके उस समय की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने मदद की। अमेरिकन कंपनियां, कारखाने दिन रात काम करने लगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कई सारे जहाज अटलांटिक ओशन में रोज आते जाते थे। अमेरिका की इकोनॉमी ब्लूम हो गई, अचानक इनकम बढ़ने लगी। इनकम बढ़ने लगती है, लोग खर्चा शुरू कर देते और 5-7 साल तक चला। लेकिन इकोनॉमी का जो पैरामीटर है वो स्टॉक मार्केट से नापा जाता है। तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NYSE बोलते हैं, और वो जगह को बोलते हैं वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट में इतने शेयर्स के भाव बढ़ गए थे। कई अमेरिकन जो आज 5 साल पहले कुछ नहीं थे, आज वो अरबोपति बन गए थे शेयर्स में। और शेयर में सट्टा तो होता ही है। आपने शायद वो सीरियल देखी होगी, वेब सीरीज स्कैम, बराबर है बच्चों, देखिए ना। क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी होता है और बुरे के साथ अच्छा भी होता है। सब कुछ ऐसे दुनिया का नियम है, सब अच्छा नहीं होता और सब बुरा नहीं होता। ये दुनिया का दस्तूर है। इतने शेयर्स के भाव बढ़ गए थे, क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट कोलैप्स्ड, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। जितने अंकों की बढ़त थी वो नीचे आ गई। मतलब जो 100 रुपये की चीज थी यस्टरडे, आज वो 50 रुपए की हुई। फिर तो गिरावट शुरू हुई। ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री में, शेयर मार्केट उस वक्त 3 साल में अमेरिका का 65% तक गिर गया था। वैल्यूएशन जो थी शेयर्स की, वो 2-3 साल में 65% कम हो गई थी। कई लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, बेचना पड़ा। कई लोग सिटी छोड़ के भाग गए थे, कई लोग मर गए थे। क्या करें, पैसा तो चुकाना पड़ता है ना। और अफरा तफरी का माहौल हो गया। 3 साल तक ये चला। दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। ऐसी मंदी मैंने देखी लास्ट ईयर, जब ये पहला लॉकडाउन भारत में आया 24 मार्च को। 23 मार्च को इंडिया का स्टॉक मार्केट खूब बढ़िया था, लेकिन मार्च में लॉकडाउन जाहिर हुआ और अप्रैल में इंडिया का स्टॉक मार्केट इतना गिर गया था जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आपके कई सारे पापा, ऐसे घर के अदर मेंबर्स स्टॉक मार्केट का करते होंगे तो उसको मालूम होगा, बहुत भारी नुकसान हुआ था। अप्रैल मई में हमारे भी ऐसी हालत थी, लेकिन उस वक्त हालत अलग थी, इस वक्त हालत अलग थी। और 1932 तक ये मंजर चला। अब अमेरिका जो सपोर्टर था यूरोप का, वो भी वही अटक गया था। ताकि यूरोप जो उठना चाहता था, यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका की मदद से आगे बढ़ने लगे थे, वो ठप हो गया। क्योंकि आज अमेरिका अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन में लग गया था कि वहां महामंदी लगी थी, ग्रेट डिप्रेशन लगा था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड। बिकॉज अब 32 के बाद अमेरिका अपनी मदद कर रहा था, और दूसरों की कैसे मदद कर सकता है
जो खुद लुढ़क गया हो. And everything changed after 32 to 39. भले मिलिटरिज्म था, नासिज्म था, फैसिज्म था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका is also one of the point to be considered at the time of World War II. अगर ये महामंदी अमेरिका में नहीं आती तो शायद अमेरिका लीग ऑफ नेशन पे कंट्रोल करता, शायद यूरोप रिकंस्ट्रक्शन में आगे 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 बढ़ता होगा. तो हिटलर, मुसोलिनी जैसे जो डिक्टेटर्स थे वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं होते. लेकिन हु कैन स्टॉप टाइम? समय तो चलता ही रहता है और समय के हिसाब से सब कुछ होता है, वो हमको स्वीकारना ही पड़ता है. सो दैट वाज 3 पार्ट. नाउ वी आर कमिंग टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 2, पेज नंबर 16. Okay, children, the seeds of World War II had been sown in the Treaty of Versailles, जो मैं बार बार बोल चुका हूं. ट्रीटी ऑफ वर्सलस के वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रखी गई थी. पेरिस पीस प्रोसेस हैड डिस्प्लीज्ड मेनी नेशंस. उसमें से सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें था? इटली और जापान में. और इसीलिए तो अपने अलग अलग रास्ते उसने चुन लिए. जापान और इटली ने अलग अलग रास्ते क्यों चुने? क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके मन में घृणा भर गई थी, नफरत भर गई थी. अंडरस्टूड? These events happened after that, which led to World War II. Now, causes of World War II. Number 1, fierce nationalism. Fierce nationalism. पहले जो नेशनलिज्म थोड़ा वीक था, अभी फियर्स हो गया था. मेरे को जिंदा रहने के लिए आपको मरना पड़ेगा. और जर्मनी में तो हिटलर के सत्ता में आने के बाद ऐसा स्लोगन चलने लगा था, इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर. पूरी दुनिया में जहां जहां जर्मन लोग रहते हैं वो पूरा इलाका जर्मनी का है. आर्यंस आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड बिकॉज हिटलर कंसिडर्ड जर्मन्स एज अ रेस ऑफ प्योर आर्यंस. वो आप अगले साल पढ़ोगे, आर्य संस्कृति. ऐसा टेंस माहौल हो गया, दूसरों को भी डर लगने लगा कि भाई कुछ हो गया है तो हम भी प्रिपेयर करें. और वंस अगेन यूरोप वाज ड्रैग्ड इनटू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके चिल्ड्रन, लेट अस सी. फियर्स nationalism. After the First World War, fierce nationalism developed in Germany, Japan and Italy. जर्मनी में नाजिज्म, इटली में फैसिज्म और जापान में मिलिटरिज्म. राइट? Germans could not forget and overcome the Treaty of Versailles because Germany was totally humiliated. Germany was totally embarrassed at that time. उसी वक्त सेल्फ रिस्पेक्टेड जर्मन्स के मन में बदले की भावना लग गई थी. द सीड्स ऑफ रिवेंज was sown in the hearts of self-respected Germans. Understood? Consequently, Hitler captured some province of Austria and Czechoslovakia. Austria तो उसकी मातृभूमि थी. Expansion of Germany. पहली बार कुछ अच्छा हुआ है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही लीडर चाहिए. Following his Nazi philosophy, the Germans must be all those provinces where Germany are staying. अभी मैंने स्लोगन दिया था ना, it is Germany where Germans are. तो ज़ेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में there is sizable population of Germans. Numbers of people are living, number of German people are living in Austria and Czechoslovakia. तो इसके हिसाब से उसने क्लेम किया कि चलो कोई बात नहीं, हम
ये फिलोसॉफी में मानते हैं कि इट इज जर्मनी वेयर जर्मन्स आर. इटली could not forget that it was ignored in the Treaty of Versailles. Italy could not forget. Under the leadership of fascist party, Mussolini started this fierce nationalism and adopted imperialistic policies. मुसोलिनी ने परिस्थिति का फायदा उठाया and he provoked fierce nationalism. Understood? Japan too gave importance to imperialism. Thus, world peace was in danger. पूरा टॉपिक समझ में आ गया बच्चों लोग? Now it was groupism. वापस वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ग्रुप बनने लगे थे. कौन किसके खेमे में जाता है देखते हैं. Since France was always afraid of Germany after World War I, क्योंकि जर्मनी को पूरा गुस्सा था फ्रांस पे, अगर मौका मिला तो एक दिन में फ्रांस को निकल जाएंगे. फ्रांस was scared from the very beginning. जर्मनी हमको नहीं छोड़ेगा. Japan, and entered the treaty with Belgium, Poland, Romania and Czechoslovakia. डर की वजह से ये सारे देश के साथ फ्रांस ने ट्रीटी की कि अगर भैया कुछ जर्मनी मेरे को कुछ करते तो बचाना मेरे को. बहुत डर गया था. रशिया Italy signed the treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, Turkey and Austria. इटली ने ये सबको मित्र बना लिया था और ये सब जर्मन साइड थे क्योंकि इटली ने जर्मनी के साथ भी साइन किया था. रशिया साइन द ट्रीटी विद जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान कि हम सब मिलकर लड़ेंगे. अगर कोई हमको कुछ बोलता है सब जवाब देंगे. इटली फॉर्म्ड रोम, बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस. रोम मीन्स इटली, बर्लिन मीन्स जर्मनी एंड टोक्यो मीन्स जापान. तीनों शक्तिशाली लोग मित्र इकट्ठे हो गए थे और तीनों पागल भी थे. राइट? एंड सपोर्ट जर्मनी एंड जापान. इंग्लैंड एंड फ्रांस, उसकी हालत कफोड़ी हो गई थी. क्या करे? इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम अनदर ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसको अलाइड बोलते हैं. अमेरिका को भी साथ लिया कि भाई जर्मनी जापान के साथ हम नहीं लड़ सकते, आप हमको मदद करो. अमेरिका भी कूद पड़ा था लेकिन बाहरी सपोर्ट. जर्मनी साइंड नॉन एग्रेशन ट्रीटी विथ रशिया. वो आगे मैं जाके मैं आपको बताऊंगा वो जर्मनी की भूल थी. उसने एग्रेशन ट्रीटी तोड़ा और इसीलिए नुकसान हुआ था. अगर जर्मनी रशिया पे हमला नहीं करता 42 में तो वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट कुछ अलग होता. फ्रेंडशिप ट्रीटी इग्नोर करके रशिया पे हमला किया, उधर से जर्मनी का डाउनफॉल शुरू हुआ. वरना 39 से 42 तक तो जर्मनी खूब आगे बढ़ चुका था. मैं आपको बताऊंगा आगे. Thus, the whole atmosphere of fear spread in the whole world. This factor too gave impetus to World War II. तो ये बात थी मिलिट्रिज्म और ग्रुपिज्म की. दिस वाज द सेकेंड फैक्टर. अब तीसरा फैक्टर जो है वो है मिलिट्रिज्म. सो द थर्ड टॉपिक विल बी militarism. Now what is meant by militarism? I have explained you in detail. Right? First topic was fierce nationalism. Second was groupism. And in that group, France was scared at the maximum limit. Okay, children? So let us see militarism. On one side, efforts were being made
to maintain peace after the First World War. Whereas, on other side, European nations were competing for ammunition. तो ये बात हुई ना, मुख में राम और बगल में छुरी. एक साइड से विश्व शांति की बातें हो रही थी, और जो विश्व शांति की बातें कर रहे थे देश, वो ही देश चोरी छुपी वेपन्स के प्रोडक्शन में भी लग गए थे, क्योंकि सबको थ्रेट किसका था? जर्मनी का और हिटलर का, कि हिटलर कुछ भी कर सकता था. ऐसा तंग माहौल बना दिया था, ऐसा तंग माहौल बना दिया था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. इसीलिए कई सारे देश हिटलर को जो सपोर्ट करते थे वो वेपन्स बनाने लगे, मींस ऑफेंसिव. और जो सारे देश डरते थे कि अगर कुछ हुआ तो हम क्या करें, तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो लोग तैयार हो गए, मतलब वेपन्स बनने लगे. Understood? The production of more and more weapons increased in all European nations. दिन रात कारखाने शुरू हो गए थे. War weapons better than the others were being manufactured. एक से बढ़िया दूसरा, दूसरे से बढ़िया तीसरा, न जाने क्या क्या चीजें हो रही थी. Some nations like Russia and Germany began compulsory military training. Right? All nations began inducting more men in Navy, Air Force and Army. बहुत सारी भर्तियां होने लगी, वेपन्स बनने लगे. जो वेपन्स अगर बनते हैं तो उसको यूज करने वाले भी चाहिए ना, तो सारे देश इसमें लग गए, माहौल तंग हो गया. In the East, Japan increased its military force. और मैंने एक जगह सुना था, सर पढ़ा है, उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नेवी शिप जापान ने बनाई थी, यामाटो. राइट? वॉरशिप. राइट? ये ढूंढना, नाम भी मैंने लिखा है. राइट? यामाटो नामक जो वॉरशिप थी वो जापान ने बनाई थी, सबसे बड़ी, और इतनी खतरनाक थी कि उसको जवाब देने के लिए दूसरे देश को भी ऐसी चीज की जरूरत होने लगी. यामाटो नाम है. In the East, Japan increased its military force. Finally, the World War II has been declared, when even England and France tried to equip themselves with war weapons. इंग्लैंड और फ्रांस की इतनी तैयारी नहीं थी, और इसके बीच विश्व युद्ध शुरू हो गया. फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. In order to establish peace after World War I, the League of Nations were formed. But neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nations of the world. बार बार मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया है कि लीग ऑफ नेशन प्रूव टोटली इनइफेक्टिव. जितनी मैं ऐसा बोलता हूं
कि ट्रीटी ऑफ वर्सलस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बात सही है, लेकिन जब ये सुपर पावर्स को, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा सेटअप किया था तो उन लोगों को पता चलेगा, उसको तो पता ही होगा ना, वो थोड़े पागल थे कि मालूम नहीं होता, तो उन लोगों को तो पता ही था ही कि ये इनजस्टिस है जर्मनी के साथ, फिर भी किया था। ओके, ये गलती हुई थी, तो ये गलती सुधारने के लिए अगर लीग ऑफ नेशंस में यूनिटी होती, अगर सुपर पावर्स ने अपना सेल्फिश इंटरेस्ट जाने दिया होता, तो शायद वो लोग वॉर को प्रिवेंट कर सकते थे। तो हिटलर इतना शक्तिशाली नहीं होता, मुसोलिनी अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, जापान जैसे यामाटो जैसी बड़े जहाज नहीं बना सकता था, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा था, ओनली 35% ऑफ नेवी फोर्स। फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जापान ने बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय। तो इसको हम क्या बोले? फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन फेल हुआ क्यों? सबका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था। है समझ में? Members of the nation were not obliged to take their problems to the League of Nations or accept the judgment passed by it. कोई लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, कोई मानता ही नहीं था किसी को, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है, हा? Many nations had moved out of League of Nations. Initially, Russia and Germany snapped their ties with League of Nations. पहले जर्मनी निकला, क्योंकि जर्मनी था ही नहीं पहले से, रशिया निकल गया क्योंकि दोनों ने टाइज बनाई थी, ट्रीटी। लेटर इटली एंड जापान मूव्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन बिकॉज ऑफ एबेसिनिया। इटली निकला, जापान निकला। जापान अटैक मंचूरिया, जर्मनी स्नैच सम प्रोविंसेस ऑफ चेकोस्लोवाकिया। स्टिल द लीग ऑफ नेशन कुड नॉट डू एनीथिंग, चुपचाप तमाशा ही देखता रहा। और लीग ऑफ नेशंस की वीकनेस एक्सपोज हो गई, और इसका पूरा फायदा जर्मनी ने उठाया था। ट्रीटी ऑफ वर्सलस, सॉरी, द ग्रीड फॉर पावर among several nations became stronger in League of Nations. It could not stop groupism. This was the biggest failure of League of Nations. League of Nations failed, right? Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles got in form of Paris peace process and at the First War. Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.6 billion pounds as a war fine. Its rural province was taken away. ये सब मैंने आपको समझाया है, इसीलिए डिटेल में हम नहीं चाहेंगे. Rhine has been opened for an international sea route. Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. The German dictator Adolf Hitler called Treaty of Versailles as a piece of paper. मैंने बोला था ना कि उसने सत्ता में आके ही जो ट्रीटी ऑफ वर्सलस में कहा गया था ये करना वो करना, वो सब कुछ बंद कर दिया था, और जो नहीं करने का बोला था वो सब उसने शुरू किया था, बिकॉज ही जस्ट कंसिडर्ड लीग ऑफ नेशन एज अ पीस ऑफ पेपर. उसका कोई वजूद ही नहीं है, कुछ मायना नहीं है उसका. आपने पेपर पे लिख दिया ये करना है, तो क्या हम करेंगे? कुछ नहीं होगा. है समझ में? तो ये लीग ऑफ नेशंस की फेलियर थी. अगर ऐसा करता हिटलर और लीग ऑफ नेशन उस पर एक्शन लेते तो उसकी मजाल थी, ये कर सकता था, नहीं हुआ. Thus, that was a failure.
imperialistic policy of Hitler, Junoon, passion. Hitler laid the foundation of the Second World War. He had a fierce nationalistic and militarist nature. क्योंकि उसका स्लोगन क्या था? It is Germany where Germans are. Aryans are born to rule the world. पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए आर्यन जिंदा है. किसी को भी तकलीफ पड़ सकती है ऐसे स्टेटमेंट से. That is why he wished the unity, stability and prosperity of Germany at any cost. कुछ भी होए, जर्मनी का फायदा होना चाहिए बस. The first victim of his imperialism was Austria. Along with Germany entered army, Austria 12th March 1938. World War पहले से ही ऑस्ट्रिया उसने जीत लिया था. On the very next day of Munich convocation, Germany had captured Czechoslovakia, 1st October 38. After that, he captured the mammal port of Lithuania on March 39. Expansion करने लगा. लोगों को भी बहुत अच्छा लगा. Thus, a grand German nation was created by Hitler. German attack on Poland. The immediate cause. वो मैं आपको 5th लेक्चर में अभी पढ़ता हूं. 5th लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा. 6th और 7th पॉइंट. The above mentioned causes have been the whole nation to a heap of ammunition. A small spark would blow the whole world, and the spark was German attack on peaceful Poland. September 1st, 1939, early morning. आप नेट में ढूंढना स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अथवा अटैक ऑफ जर्मनी ऑन पोलैंड. आप लिखो, सब कुछ आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. Thus, the World War II had begun. Britain and France want Germany to stop the war immediately. लेकिन जर्मनी नहीं माना. But Germany ignored the warning, and hence Britain and France plunged into the war. ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ. तो ये था सारा पॉइंट्स. जर्मनी रिलेटेड बराबर है वर्ल्ड वॉर 2 रिलेटेड. नाउ इट इज द टाइम टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन. Homework. Write a detailed note on the following factors. Right? Write a detailed note on following factors. Number 1, fears. Number 2, groupism. Number 3, ambition of Hitler. And number 4, immediate cause. Or immediate cause
of World War II. These are the 4 questions of your homework. Write a detailed note on following factors. Number 1, fierce nationalism. सारे मैंने आपको समझाए, मटेरियल में दिए हैं. Groupism, ambition of Adolf Hitler, immediate cause of World War II. So with this, we are ending lecture number 4 of chapter 3. In 5th lecture, we'll study more about the incidents. Okay, children? See you next lecture. Till then, goodbye. Take care.